السلام علیکم خواتین و حضرات، خبرناک میں خوش آمدید. اور میں ہوں ڈمی میوزیم سے آپ کا اپنا صفدر مملکت، مطلب کیپٹن صفدر. اس میں کھا کی کون سی بات ہے؟ اس ملک میں جو صدر بنے ہیں ان کے کبھی دماغ میں بھی تھا کہ وہ بن سکتے ہیں صدر؟ وہ تو کونسلر کے الیکشن بھی ہارتے رہے ہیں. میں دیگر لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو دماد ایسوسی ایشن والے جو لوگ ہیں نا، ان سے جا کے پوچھنا کبھی. بڑی بڑی خواہشات پال رکھی ہیں آپ نے. نہیں، خواہشات کی بات نہیں ہے، تو اللہ کی عطا ہے، وہ جب جس کو عزت دے. وہ چاہے تو کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر بھی عورت بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہو. یہ بھی ہے. خواتین و حضرات، آج بڑے دلچسپ مہمان کے ساتھ آپ کی اس عید کے موقع پہ ملاقات کرا رہا ہوں. حکومت جائے نہ جائے، عید تو جا رہی ہے فی الحال. تو میں نے کہا آپ کا ہر طرف کرکٹ کا موسم چل رہا ہے، ساری عوام کرکٹ میں انوالو ہوئی ہوئی ہے، تو آج آپ کی ملاقات کرکٹ کی ایک عظیم ہستی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، منظور الہی صاحب کی بیٹی سے کرواتے ہیں. جی مس ثانیہ کامران. اور میرا سوری میں بتانا بھول گیا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر وومن ونگ پی ٹی آئی پنجاب مس ثانیہ کامران، ممبر پنجاب اسمبلی، ایک انتہائی خوش گفتار، خوش الہان، خوش لباس، اور جتنے خوش ہیں اگر آپ وہ ملا بھی لیں تب بھی وہ خوشی آپ نہیں کر سکتے جتنی ان کے چہرے سے چھلک رہی ہے اس ٹائم. اور سوچنے کی بات یہ، اس مہنگائی کے دور میں بھی یہ ہر وقت خوشی سے مسکراتی رہتی ہیں. میڈم اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے بہت جلدی تبدیلی لا رہا ہے، اور پاکستان ایک پراسپرس کنٹری انشاءاللہ بہت جلد بنے گا. اللہ کرے یہ خوشی ہمیں بھی دیکھنے کو نصیب ہو. نہیں، آپ سے زیادہ خوش خوراک وہ ضرور ہو سکتے، لیکن ہم سے زیادہ خوش خلاق نہیں ہو سکتے. آپ آج پھر آ گئے ہیں، باپ بیٹا دونوں. جی بائی ون گیٹ ون فری. مجھے تنگ کرتا ہے کہ انکل نے اصرار کیا آپ ضرور ساتھ چلیں. ہاں جی. آپ اس کو کیوں لے کے آتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے پول آپ کے کھول دیتا ہے؟ نہیں، وہ رکشے والا لے کے آتا ہے، مجھے تو صرف ساتھ بٹھاتا ہے. آپ کو میڈم، آپ کو نظر ٹھیک آتا ہے؟ ہاں. تو پھر یہ بتائیں کتنی انگلیاں ہیں؟ 4. تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے اتنی مہنگائی کر دی ان کو نظر نہیں آتا؟ میں بھی چاہتا ہوں یہ بکواس کرتا رہتا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا، اپنا سجن یا دشمن یہ سب کو گلے لگاتے ہیں. اچھا ویسے بات وہ اس نے بھولپل میں کی ہے، حالات کچھ ایسے نہیں ہیں ثانیہ؟ دیکھیے، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے وہ تو میں مانوں گی کہ مہنگائی تو ہے اس وقت عوام کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں. جس طرح کووڈ ہے اور جس طرح رمضان کے اندر لاک ڈاؤن کو ہمیں لگانا پڑا ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے مشکل ہیں. اسی لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بھی ہمیں کہا کہ اس دفعہ کی جو عید ہے وہ تمام لوگ جو ہیں، حکومت اور تمام عوام جو ہے وہ سادگی سے منائے. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب واحد میں کہتی ہوں کہ لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو واقعی میں غریب کا وزیر اعظم ہے. انہوں نے جس طرح 8 ارب روپیہ 12,000 روپیہ پر خاندان جو ہے انہوں نے بانٹا پچھلے سال، اور اس دفعہ بھی احساس پروگرام، کفالت پروگرام کے تھرو عوام کی ہیلپ کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے. رمضان بازار جو ہے وہاں پہ 65 روپیز پر کے جی جو ہے چینی مل رہی ہے. آپ یہ مانتی ہیں کہ اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے؟ جی مہنگائی بالکل. تو آپ کیوں ہر وقت ہنستی رہتی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، اتنی خوشحالیاں کیوں، یہ کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ جی. دیکھیں، اگر آپ کے سر پر چھت ہے، آپ پانی صاف پی سکتے ہیں اور اپنا علاج معاوضہ کرا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی اسٹیبلٹی زندگی دی ہوئی ہے، تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو علاج معالجے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے یہی جو فیسلٹی ہے وہ عوام کے لیے بھی جو ہے میسر کریں. نہیں، عوام میں سے ایک شخص علاج کروانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے. ان کو ہم نہ ہی جانے دیں تو بہتر ہے. وہ عوام نہیں ہے یہ تو. ویسے اس خاندان کا نام تو نا گینیز ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور ایسی بیماریاں ان کو لاحق ہے کہ وہ علاج جو ہے نا یہاں تو کیا لندن میں بھی نہیں ہوتا. اچھا ثانیہ جی، کون زیادہ ہینڈسم ہے، کیپٹن صفدر صاحب یا حمزہ شہباز صاحب؟
वाह वाह वाह, ये हुआ ना सवाल। खैर से सफदर साहब ज़्यादा हैंडसम है। आप मुझे ये बताएं वैसे आपकी घर दमाद यूनियन कैसी चलती है? दामाद गालिबन आपके प्रेसिडेंट तो जरदारी साहब थे, जरदारी आप जनरल सेक्रेटरी थे। हाँ ऐसा ही है, हमने कितने कहा। मेंबर्स बने आपके? देखें जी, तकरीबन हर दामाद ही घर दामाद होता है, बेचारे को 2-2 घरों में सर्व करना पड़ता है। कौन से 2 घरों में? बीवी के घर में और बीवी के अम्मी अबू के घर में। वैसे गालिबन आपका लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं था? अच्छा मैडम आप ये बताएं, आप फीकी चाय पीती हैं? मैं हाँ जी। फिर पापा ने ठीक ही कहा है, हुण सारे फिकियां चावां पीणगे, चीनी गायब हो गई। सॉरी, मैंने तो ये कहा था कि पीटीआई वालों ने ना मुल्क से चीनियों को गायब कर दिया ताकि कोरोना फैलने का अंदेशा ना हो। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। ओए बच्चे ने तेन मरवा देना, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 400-500 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सानिया जी, सच बोलने में ज्यादा मिलावट कौन करता है, शहजाद अकबर, शिबली फिराज या फिर फिरदौस आपा? जो वजारतें इनके पास हैं इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल से ये पहली दफ़ा हमारी हुकूमत में हो रहा है कि आवाम तक हर सच्ची, कड़वी, मीठी, हर किस्म की जो गुफ्तगू है या हर किस्म की बात जो है वो बिल्कुल सही सलामत आप तक पहुँचे। सानिया जी, जो वजारतें इनके पास हैं यही तो वजारतें हैं जहाँ सच नहीं बोला जा सकता। मेरा ख्याल था बेधड़क ये शहजाद अकबर का नाम लेगी। और मुझे ये तीनों मेंबर्स बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैडम आप पर किसी ने दम किया हुआ है? नहीं बेटा। तो फिर पापा क्यों कहते हैं कुछ हम ख्यालों ने पीटीआई की नाक में दम कर रखा है? मैंने कब कहा है? आई एम सॉरी मैडम, मैंने इसे कहा था कि इसकी अम्मा ने मेरे नाक में दम कर रखा है। ਓਏ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा तुम अपनी शर्ट के कलर की लिपस्टिक भी लगा लेते ना, ज्यादा प्यारे लगते। बेटा अच्छे बच्चे जो है ना वो बड़ों की बातों में नहीं बोलते। तो फिर बिलावल क्यों बड़ों की बातों में बोलते हैं? आगे से की ना बहुत अच्छी बात की, शाबाश। नाक में दम तो पीटीआई ने किया हुआ है तमाम अपोजिशन के। बस देख ले, नाक में इतना दम नहीं करना कि जोर की अपोजिशन निच मार दे तो पीटीआई ही उड़ जाए। पीटीआई कहीं नहीं जाती, ये 5 साल भी पूरे करेगी और अगले 5 साल भी इंशाल्लाह। और हम भी ये चाहते हैं पीटीआई 5 साल पूरे करे, मुझे लग नहीं रहा कि करेगी। अब तुझे वैसे सब्ज़र साहब आप तो चाहते होंगे कि मरियम घर से बाहर ही रहे। कि मैं क्यों चाहूँगा जी, मैंने घर में स्टापू खेलना होता है। मैं उनकी ड्राइविंग करता हूँ जी, जब आप देखें उनकी गाड़ी मैं ही चला रहा होता हूँ। अच्छा मैडम मुझे ना आप मिट्टी का मादू दिखाएं। क्या दिखाऊं? मिट्टी का मादू। वो क्या होता है? मिट्टी का मादू आपको नहीं पता? नहीं। वो जो बुत सा बना होता है और चुप करके बैठा होता है। जैसे ये ये कहना जरूरी था, मैंने कुछ कहा है? नहीं ये तो बोल रहे हैं, बड़ी टाँ करके बोल रहे हैं। कहानी है, जुबान ठीक करो अपनी। जी। अच्छा, मिट्टी का मादू क्यों? पापा कहते हैं मिट्टी का मादू वजीर आला हाउस में पड़ा हुआ है। कमीना, आई एम सॉरी, वो 2 वर्ड लगाए। ये 2 फिर मेरी तरफ से। मैंने तो ये कहा था कि वजीर अल्लाह हाउस में ना रोशनदान में बड़ी मट्टी पड़ी हुई है तो उसे झाड़ पूंछ लिया करें। अच्छा ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। माशाल्लाह जितना खूबसूरत लगता है ना, तुझे नजर ना लग जाए। हाँ। कान पे ना जूती लटका के घर से निकला कर। वैसे सानिया, उस्मान बुज़दार सुस्त खामोश तबा, आप समझती हैं कि पंजाब के लिए बड़े मौजूद वज़ीर आला हैं? बिल्कुल, देखिए सारा फोकस उनका काम पर है, बातें कम करते हैं लेकिन काम बहुत करते हैं। इसका हुलिया बताता है इसका बचपन रिछों में गुजरा है। सानिया जी, वैसे आम तौर पर वर्किंग वुमेन ज़्यादा घर में खाना नहीं बनाती, आप घर में खाना बनाती हैं? देखिए वर्किंग वुमेन के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो जब मैं घर पे जाती हूँ तो मुझे होता है कि ज़रा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। अगर घर में ज्यादा मेहमान आ जाए तो फिर मूड बना लेती हैं। आप इजाज़त दें तो 2 मैं भी लगा लूँ। 10-12 शो लगाएं। अच्छा ये बता दें कि खाना क्या पसंद करती हैं?
मैं कॉन्टिनेंटल का। वैसे ज्यादा सियासतदान तो मुल्क को ही खा रहे हैं। और अक्सर हुकूमत से जाने के बाद पता लगता है कि कितना अरसा खाते रहे हैं, क्या क्या खा गए हैं। आप भी तो कॉन्टिनेंटल में खाते रहे हैं। इनको मैंने पूछा आप कौन सी डिश पसंद करते हैं, कहते हैं डिश। तेनू किसी ने पूछा तेनू केड़ी डिश पसंद है, कहना मुझे पहली में छोड़ दे, मैं आप ही खा लूंगा। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਲਿਆ ਚਲੋ। अच्छा ऐसे लड़के को ना अंगूर खरीदते हुए भूंड जरूर लगता है। वैसे कैप्टन साहब घर में आपकी ज्यादा चलती है या मरियम बीबी की? उनके घर में उनकी चलती है, तो आपके घर में किसकी चलती है? मेरे घर में जाहिर है वहां भी उन्हीं की चलती है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। सानिया जी, इस मुल्क में असल में 2 कैप्टन हैं, दिल पे हाथ रख के बताएं असली कैप्टन कौन? असली कैप्टन तो इमरान खान साहब हैं, आपके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। मैडम आपके पाँव तो बिल्कुल ठीक है, जख्मी तो नहीं है। क्यों? मेरी इज्जत रखना। वही तो कह रहा हूं, तो फिर आप क्यों कहते हैं पीटीआई वालों ने शौकत तलीन को ला के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। तुझे तो कहा था कुल्हाड़ी पकड़ा, मैंने मसवाकें सीधी करनी है। मार क्यों रहे हो? उसको मारने से क्या होगा? आप सच बात बोलते हैं, बेटा भी आपका सच कहता है, सारे पाकिस्तान सच कह रहे हैं। असल में प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोगों को इतने अरसे से शॉर्टकट्स की आदत पड़ गई है कि आज इमरान खान साहब जब कह रहे हैं ना कि एक सिस्टम के तहत चला जाएगा, हर इदारा सिस्टम के तहत काम करेगा, तो हम लोग ज़रा थोड़ा सा बेसब्रे से हो गए। नहीं। अच्छा एक बात बता दूं आपको, जी बताइए। अगर कोई खातून वजीर खजाना बन गई, खान साहब उसको तब्दील नहीं करेंगे। फिर आप मेरी सिफारिश करें ना। अच्छा कैप्टन साहब, सुना है आप इतने खूबसूरत होते थे कि औरतें आपको देखने के लिए छतों पे चढ़ जाती थी। आए आए क्या सवाल पूछा है आपने। बताएं। सानिया जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो समझती हैं ना कि आप नहीं बताएं। मैं आपकी तारीफ करने लगा था, आप समझती हैं कि आप बड़ी खूबसूरत हैं। मैं आपको अपनी जवानी का आलम बताऊं, आप अंगुष्ठ बदंडा रह जाएंगी। क्या क्या क्या? मतलब जज्बाती होकर अपनी उंगलियां टुक बैठेंगी। जिसने उंगलियां टुकनी थी उसने टुक ली। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। ये उस दौर की बात है जब रेशमा जवान थी। आपको जवानी में रेशमा भी कहते थे? यार मैंने इस्तारता ने एक बात कही है। रेशमा जवान सी तुसी पीछे उधर ढोलकी बजाते थे। मैं जब ये सानिया जी इनकी बातों पे कान न धरे, मैं जब अपने महल्ले में निकलता था ना स्कूटर पे अपने, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। जिस महफिल में मैं जाता था ना, सबकी नजरें मेरी तरफ होती थी कि कोई चीज ना उठा ले। मैं जब अपने महल्ले में अपने गांव में आता था ना, तो औरतें छतों पे चढ़ जाया करती। अच्छा कैप्टन साहब, आप बात पे यूं विक्ट्री का निशान बहुत बनाते हैं, घर में तो कभी ऐसी गलती नहीं की? मैं क्या करूं, विक्ट्री का निशान ना बनाऊं, ठेंगा बनाऊं? ये कैमरे पे चलेगा? बनाते हैं, कभी बनाया? कभी एक दफा घर में कोई बना सकता है विक्ट्री का निशान? घर में तो विक्टर होता ही दूसरा है। अच्छा सानिया जी, ये दसो फुल तो सारे बड़े खूबसूरत होंगे ने, कोई अपनी रंगत की वजह तो, कोई अपनी खुशबू की वजह तो। तुसी ये दसो कि तुहानू केड़ा फुल बड़ा पसंद है? मैनू ते मोतिये दा फूल पसंद है। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी खूबसूरत पंजाबी आप बोल रही थी। शुक्रिया। आप बोल रही थी तो ऐसे लग रहा था आरिफ लोहार के पीछे चिमटा बज रहा है। अच्छा कैप्टन साहब, तुहानू अगर पंजाबी बोलनी पै जाए तो की करोगे? जरा बोल के दिखाओ। पहले तो मैं इनको बोल सा, वो हिंद को हैं। फिर मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर सा जिसका नाम सी पता है कि क्या? कैप्टन टाक। कैप्टन टाक में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सफदर मुमलिकत। पंजाबी है ना, हिट प्रोग्राम है ना सानिया जी। गुड लक जी। वैसे कैप्टन साहब, आप लाहौर रहते हुए हिंद को बोलने को तरस जाते होंगे ना? मैं तो पंजाबी समझ लेता हूँ, आप इनको नहीं समझ सकेंगी। क्यों नहीं समझ सकती, आप बोले। अच्छा फिर दसो मैं क्या बोल रहा?
दसो एक ध्याड़े के होया जी मैं ढाके दा चढ़िया मैं देखिया तलांदारो एक सी आंदा सा हूँ सी इस पासों आंदा सा दूए पासों में देखिया पलड़ी आंदी है जी पलड़ी जड़ी है सी उसदे पैर इस तरह पीछे तब ए बारियेदार में देखा जैसे ले बुआ खोलिया को ती भी आवाज़ मैंने क्या कहा है एक ही भाई नहीं समझ आई ना नहीं। अब समझ आएगी। चलो मैं आपको इनको में एक ऐसा गाना सुनाता हूँ जो इनको में नहीं है उर्दू में, लेकिन मैं उसको इनको में गाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सुनाए। ओ मड़े दिला दिया चैन आवा मड़े दिल को दुआ कर छोड़ो। ये मुझे कैप्टन अंकल, मेरा ख्याल है हिंद को समझने से पहले हमें पीटीआई को समझना चाहिए। पीटीआई का और इनको का क्या ताल्लुक है? अच्छा, इनको स्पीकर एरिया में तो पीटीआई है ही नहीं। पीटीआई दिल में आती है दिमाग में नहीं। ये डायलॉग सलमान खान का है कि इमरान खान का है? दिल से चीजें निकल जाती है, दिमाग से नहीं निकलती। ओ मड़े दिला दियो चैन आवा मड़े दिल को दुआ कर छोड़ो। ख़वातीन व हज़रात यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं आपका अपना डमी म्यूजियम से आया कैप्टन सफदर। बात ये है कि आज ईद के मौके पे हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, यानी बाबा रोसो, टेमी और सैमी। और ये वही बाबे हैं जिनको उनकी बीवियों ने निकाल दी है। अरे ये बताना जरूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है ना, बीवियां ऐसे थोड़ी घर से निकालती हैं, बहुत बड़ी वजह होती है तो फिर निकालती हैं। थानू तो पता है इस गल का। अच्छा मुझे बात तो करने देना पहले, हाँ उसके दसो बाद ना, वेखਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। यार कानून निकलिया, हंसी आप निकले। आपका जुर्म ये नहीं है कि आपको आपकी बीवियों ने निकाला है, आपका जुर्म ये है कि ये लोग जाली ड्रग एडिक्ट बन के एक रिहैब सेंटर में दाखिल हो गए हैं ज़बरदस्ती, और वहाँ के डॉक्टरों ने ये एतराज़ किया है जो हमारे सामने ही बैठी हुई हैं। क्यों जी, पहले हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, अब क्या किया है इन्होंने। ये तीनों बुड्ढे एक नंबर के झूठे हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। अच्छा, ये साहबान अच्छी सूरत देखकर बीमार पड़ जाते हैं बस। आपको कैसे पता लगा? इन्हें खवातीन की कुर्बत का नशा है। औरत को देखते नहीं कि ऐसे चहकते हैं जैसे बच्चा खिलौने को देख के। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦੇ। है? सच्ची बात पता क्या है कैप्टन साहब? क्या? ना तुम होश में हो ना हम होश में हैं। चलो मैं कदे में है, वही बात होगी। ये देखें, इस वजह से बीवी ने घर से निकाला है, तो आपने इनको क्यों दाखिल कर लिया है वहाँ पर? कैप्टन साहब, इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाए, आप जानते हैं उसमें अपनी उम्रें क्या लिखवाई थी? क्या लिखवाई हुई थी? 30, 35 साल लिखवाया हुआ था। अच्छा, आपने लो हस्पताल च नहीं कॉलेज च दाखिला लिया? आपको शर्म नहीं आती? अपनी एज बजाय इसके कि आप आइस एज बताएं, और आप 30-35 बता रहे हैं। और जेड़ी रह गई है ਉਹ 35 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾੜ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪਿਆ। हाय, भाई हमारे दिल से पूछे 35 भी मुबालगा है। हाँ जी, टाइम मिले तो गोडियां कोलों भी कदी पूछ लेना। सफदर साहब, असी तो इन्हों सिर्फ ये नहीं खाएंगे, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। अच्छा, गीत भी इंजी गा रहे हो जिवें नशा टुट रहा हो। ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਐ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। और वैसे भी माफी मांगने में हर्ज क्या है? बेशक जो हमसे हुआ माफ करो। ਓਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ, ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਗਿੱਦੜ ਨਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। अरे शब जो हमसे हुआ माफ करो, नहीं पी थी बहक गए। इस मनूस ने किया क्या है जो अब तक माफिया मांगता फिर रहा है? जरा एक्सप्लेन करेंगी? हमने इनको बाहर निकाल दिया था। अच्छा। जब शाम को हम दोनों घर जाने लगी, आगे से पीली पत्ती वाला पान खा के तीनों मदहोश पड़े हुए थे। ये कोई नशा वशा करते नहीं है, पान भी इसलिए खाया कि मदहोश नजर आए। हाय, बदहोश नजर आए ना? ये किस जगह पड़े हुए थे? वो जो पहली गली छोड़ के जो आगे काले डब नंबर 14 में जो जहाँ कुत्ता बांधा हुआ होता है वहाँ? हाँ, बिल्कुल वहीं पे। अरे ये कुत्ता फिर इन्होंने बंद के आप पान लैन गया। बेमायदे नहीं, शिकायतें तो बहुत हो गई। ये देखिए,
मेरा नाम महजबी बिल्कुल नहीं है, मुझे हर वक्त महजबी महजबी कह के पुकारते रहते हैं। आपका नाम महजबीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समा है। समा। भाई कितना आपकी टांगे आपकी कब्र में, आपको शर्म नहीं आती? इतना प्यारा उनका समा नाम है, आप उनको समा नाम से शाम से क्यों नहीं याद करते? लेकिन हमारा इज्जत सार देखिए, हम उनसे मुखातिब कैसे होते हैं, वो बताइए ना जो हमने आपसे कहा था कि शिकन न डाल जबी पे शराब देते हुए। ओ यार, तेरी कोई ऐसी बात है जिसमें इस लानती शराब का जिक्र ना हो? अरे लानती ही कह दिया आपने। देखिए मैं अर्ज किया है शिकन न डाल जबी पे शराब देते हुए, ये मुस्कुराती हुई चीज है, मुस्कुरा के भला। ये देखिए, देखा है आपने? तू सच्ची ये कुड़ी है बाबा ते ट्रंप नाल भी ढीठ है। क्यों बाबा जी, आपको क्या आखिर आई हुई थी? क्या जरूरत थी इधर मरने की? कुछ भी नहीं कैप्टन साहब, बस कुड़ियां नू जाके समझाईदा ही है। ओए यार टोरन लग्या समझाईदा, बड़ा समझाया, समझदियां ही नहीं। क्या समझाया? ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। आप उनसे ज्यादा बेशरम है। ਬਾਬਾ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰੀ ਫੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਚਲੇਗੀ। आए आए ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀਆਂ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਤਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। वो इनका जो हाल है ना, ये तो चाहते ही यही होंगे इनको बैंकॉक की कोई टिकट दे। क्या हाल है हमारा? और ये उधर गए ना अगर बैंकॉक, जिंदा वापस नहीं आएंगे, कन्फर्म बता रहा हूँ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, क्या मतलब है? हाँ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਲੀ ਪੋਲੋ ਵੇਖਣ ਆਈ। दे ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੜਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿੱਟੇ ਮੁੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। मैं कह रहा हूँ आप हद क्रॉस कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोलता कम हूँ, डंडा ज्यादा उठाता हूँ। तो उठाए ना डंडा, इतना कुछ सुना दिया इसने मुझे। मैं वैसे एक बात आपको बताऊं, आप अपनी उम्रों का ख्याल करें, कब्रों में आपकी टांगें लटकी हुई हैं, उनकी परवाह छोड़ें, वो पढ़ी लिखी हैं, अपना भला बुरा वो जानती हैं अच्छे तरीके से, ये उनको फैसला करने दें उन्होंने कढ़ाई खानी है या नान टिकी। ये फ्रीडम ऑफ डाइजेशन है, ये होना चाहिए। हो कैप्टन साहब, दिल होना चाहिए जवान ते उमरा एक टाइम आंदा जिन्हों खंग लगती है, उसके बाद फिर लाल सूट वाली नहीं। और लाल सूट वाली क्या होता है? उनका इतना प्यारा नाम है गुलबदन। सर समा, मैं क्या मेरे ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ये तो वो बकवास है जो अकल मानती ही नहीं है। क्यों जी? इतनी आखिर आपको तो नहीं आ सकती। मुखल्लजात बक रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तीनों बुड्ढे एक नंबर के झूठे हैं। अच्छा, वैसे दांत पीसती हुई आप ख्याल किया करें, आप हद होती है। और आप भी अभी तक ऐसी ही बैठी हुई हैं। अच्छा सा बुढ़ा देख के हाथ पीले कराएं, अच्छा सा मुंडा नेक सा मुंडा कैप्टन साहब ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਸਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇਰੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨਾ, अगले वजीर आजम तुसी बनो। ਸੋਪਰ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰੇ। ख्याल है मुजफ्फर कर दे, और मुजफ्फर इसके साथ वजीर आजम बनो, इस वक्त बड़ी गड्डी होवे, एक प्रोटोकॉल बातू। मैंने बात सुननी नहीं है ना कोई बात करनी है, कोई बात नहीं करेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। अश्क जहांदाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। हमारा सेगमेंट दुरुस्तनाक, जिसमें हम भूले भटके अशार को असल शायर के पास यानी कि ओरिजिनल शायर के हवाले करना चाहते हैं, और नहायत अर्करेजी के बाद हम ये सेगमेंट बनाते हैं, लिहाजा गौर से सुनिएगा। ਅਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕ ਫਾਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। आप कोशिश करें, देखें, शायरी तो महसूस करने का नाम है, सुनने का नाम नहीं है। आप महसूस करें, लुत्फानंदोज होंगे। जी प्रोफेसर साहब, खुशामदीद, ईद मुबारक बहुत बहुत। जनाब अली, आपको भी ईद मुबारक। और ईद के मौके पर आज हम कोई नोक झोंक तो नहीं करेंगे, लाइटर नोट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अच्छी बात है, आपसे तवक्को तो नहीं वैसे।
اور ہمیں آپ سے بھی توقع نہیں. کوئی نہیں سمجھ آتی یہ کہہ سانو چمڑیا انیاں بطخاں دے ترلے پان والے وہ آنڈا کیوں نہیں دیندے. بس بنتی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر. واہ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب, کیا کہنے. اس روپ کے ساتھ بادہ و ساگر, اللہ اللہ. عید مبارک آپ کو بھی. عید مبارک. میں انہاں نو روکنا سا وہ بھی شروع ہو گئی. وہ شہراں دے تکیے تے پھل بوٹے بنان والی ہے, کوئی آسان جے شعر سنائی. پروفیسر صاحب عید کا پرمسرت موقع ہے تو کوئی پرمغز اور ثقیل باتیں کرنے کے بجائے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کوئی ایسا شعر ہے جس نے آپ کو بھی چکرا دیا ہو. اشعار تو ایسے اشک سب ہیں جی, لیکن ایک شعر ایسا ہے کہ جس نے واقعی چکرا دیا ہے. واہ کون سا؟ یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا اور شاید کسی سے منسوب بھی کر رکھا ہو. کیوں آرزو حسرت بنی اس کا بھی تو حساب ہو, واہ محشر کے اندر اے خدا ایک اور محشر چاہیے. واہ 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 واہ. وہ شعر تے سیدھا ہے تو بھنگ والے پکوڑے کھا کے پڑھیا ہونا ہے. اچھا ذرا الفاظ کا چناؤ مناسب کیجیے, تھوڑی بہت بد تہذیبی چل سکتی ہے لیکن الفاظ کا چناؤ. عید ہے تب کیا. پروفیسر صاحب محشر کے اندر محشر یعنی کہ ناسودہ خواہشات کا حساب کتاب کرنا چاہ رہے ہیں مرزا غالب. جی ہاں ہیں مرزا غالب. کیا بات ہے مرزا غالب کی, واہ الٹیمیٹ. غالب کی تو واقعی بڑی بات ہے, اچھے شاعر تھے, لیکن اس شعر کے حوالے سے آپ تعریف کر رہے ہیں غالب کی. ظاہر ہے. اچھا یہ شعر غالب کا قطع نہیں ہے. یہ شعر غالب کا نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں, آپ کا ہے. اچھا پہلے کہہ رہے آپ تھے کا ہے. کوئی مسئلہ ہے غالب صاحب نال انہاں نو, ہاں پتہ نہیں غالب صاحب انہاں دی ٹنڈ کر کے تے دلی دا نقشہ بنا کے چلے گئے. دیکھیے عشق صاحب الفاظ کا چناؤ ذرا. ہر بدھ دے بدھ انہاں دی ٹنڈ کر کے اتنے ٹھونگے مار دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب آرزو کا استعمال غالب جیسا کسی کے ہاں نہیں ہے. بالکل بجا فرمایا. بھائی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آرزو کے استعمال سے یہ شعر غالب کا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. بجا فرمایا. غور تو کیجئے, پیرایا ہی غالب کا ہے. بھائی کیسے؟ وہی خود کو غیر تصور کر لینے کا انداز, واہ خدا سے بے دھڑک شکایت, واہ. وہی برجستگی, وہی خفگی, مصنوعی خفگی, بلکہ یہاں تو دھمکی بھی موجود ہے. اگر شکایت اور دھمکی کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر غالب کا ہے تو پھر ایسے اشعار تو اور بہت سے ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ دھمکی ہے. مثلا دیکھیے, فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا, یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. کیسی بات, اسے غالب کا کہہ لیں. یہ تو اقبال ہے نا, یہ تو مشہور شعر ہے. بھئی یہ بات, یہ شعر بھی بہت مشہور ہے, لیکن ضروری نہیں کہ یہ غالب کا ہو. میں نے تو تمام دیوان کھنگال ڈالے ہیں. بھئی نسخہ حمیدیہ ہو, نسخہ عرشی, نسخہ نظامی, نسخہ خواجہ اور بہت سے, مجھے تو یہ شعر کہیں نظر نہیں آیا. اشک صاحب انہاں دی عمر دا تقاضا ہے, ایس عمرے بچیاں دے نا بھول جان گے, نسخے نہیں بھولن گے. بھائی نسخہ در حقیقت وہ دیوان ہیں جو مختلف ادوار میں تالیف کیے گئے ہیں. جس دن مشاعرے چ تیری جیب کٹی گئی نا تو شاعری چھڑ کے نا گرم آنڈے بیچنے شروع کر دینے. سما آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد, مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مان. واہ واہ, یہ بھی نہیں باز آندا بھی آٹے دیاں چڑیاں بنا کے آپ چوں چوں کرن والا. جی جی فرمائیے فرمائیے, میں ہمتن گوش ہوں, کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ خیال دیکھیے, وہی شکوہ, وہی شکایت, وہی دھمکی, خدا کے حضور ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والا معاملہ. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. واہ واہ, کیا کسر رہ گئی. ملا مرحبا برحق بولا. آہا آہا. بے واہ واہ واہ, آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. خدارا, ایک جیسا خیال ہونے سے یہ متنازع شعر غالب کے کھاتے میں کیسے چلا گیا؟ دونوں جہان دیکھ کے وہ سمجھے یہ خوش رہا, واہ یا آپ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں. کیا بات, یعنی وہاں شرم آ گئی, یہاں نہیں آنے والی. یہ جنی مرضی ناراض ہوئے, ایک آئس کریم کھاؤ خوش ہو جاندی ہے. ایدیاں گلاں سنو. ਵੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ. بھائی وہ ہرگز ایسی نہ تھی, حالات نے ان کو ٹوٹ فروٹ کا شکار کر دیا. زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, بھئی واہ,
हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे। समझ में नहीं आती वाह कहें या वाहियात। हैं क्यों जी? वाहियात ही मुनासिब। इतना खूबसूरत शेर और ऐसे फेंक दिया आपने। की गल पूरी बानी में कमाई, नो बाल हो गया। गालिब नहीं मनन दिया, तू गालिब लेके आ गई। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अब देखिए, जिंदगी का किसी शक्ल से गुजरना गोया जिंदगी मादे की कोई हालत है जिसे कीफ से गुजारा गया हो। चाह बगैर पुनियों पी लेंदी है ते जिंदगी नू कीफ चो गुजारन रही है। ਇਹੋ ਜੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ। गालिब का ख्याल और आपके बाल एक ही जैसे हैं, उलझे हुए, पुरपेच, लच्छेदार। और गालिब जिस तरह ख्याल बुनता है उस तरह आप जाल बुनती हैं फजूल दलाइल का। आपने कोई जाल बुना है? बिल्कुल नहीं। कोशिश की है बुनने? मैंने तो जो बात भी की है दलील के साथ की है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि महशर के अंदर ए खुदा एक और महशर चाहिए, ये शेर गालिब का है या नहीं? तो फिर आप बता दीजिए ना किसका है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ 7 ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। आप उनकी बात का जवाब दीजिए। ये गालिब का नहीं है, आप कायम हैं। कितनी बार कहूँ? अगर गालिब का निकल आया फिर कैसे निकल आएगा, कहाँ से निकालेंगे? और मैं कह चुका हूँ कि तमाम मुस्तनद दवावीन गालिब के जो हैं उनमें ये शेर नहीं है। अब ये पूछती है ये शेर किसका है। मैंने बसियार कोशिश की, मुख्तलिफ किताबें देखी, दवावीन खंगाले, मुझे तो ये शेर कहीं नहीं मिला। इनके पास इसका मतलब है जवाब मौजूद ही नहीं है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵਿਗੜ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा मेरे पास जवाब नहीं है, आप इसे गालिब के खाते में डाल दीजिए। भाई पूछने वाला तो इनको है नहीं। भाई आपके पास जवाब नहीं तो आप चाहें गालिब के खाते में डालिए या वालिब के खाते में डालिए। नाज़रीन, हम आपको भी दावत फ़िक्र देते हैं, तलाशिए, खोजिए और खंगालिए, हमें भी बताइए, हमारा हाथ बटाइए, अदब की खिदमत में हमारा साथ दीजिए कि ये शेर किसका है। ज़रूर। क्यों आरजू हसरत बनी इसका भी तो हिसाब हो। वाह। महशर के अंदर ए खुदा एक और महशर चाहिए। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं कहा जी ये बंदा नहीं फारेगा। पिछली बारी 500 रक्शे का कह के लै गया जी, वापस लेना है। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।